Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Anthropology 360 Degrees, which is a complete lecture series on anthropology. In the previous lecture, we did the theory of Lamarck, and in today's lecture, we'll begin with the Darwin theory. Okay, so the Darwin theory is also known as theory of natural selection, which is also known as survival of the fittest. So these terminologies like the theory of natural selection and the survival of the fittest, let us study through an example. The example, this is the example which will perfectly show what is theory of natural selection and what is survival of the fittest. So let us suppose there is a green grass, and on green grass we see few green beetles and some red beetles and some red beetles. Okay. Now with time, due to sexual reproडक्शन से क्या आएगा, वेरिएशन आएगा पॉपुलेशन में. दिस इज ऑब्वियस, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशन आती है. दिस हैपेंस ड्यू टू डिफरेंट जीन्स, क्रोमोसोम्स वगैरह की वजह से वेरिएशन आती है. ये आप पढ़ेंगे कि डीएनए में कुछ पोर्शंस होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं, उसकी वजह से पॉपुलेशन में आती है वेरिएशन. ठीक है. अब क्या होगा, ड्यू टू वेरिएशन क्या होगा, जब पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन बीटल्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. नाउ लेट अस सी, एक क्रो आता है वहां पे, अ क्रो, सम सॉर्ट ऑफ क्रो कम्स देयर. नाउ what is an easy target for the crow, the green beetle on the green grass or the red beetle on the green grass? Obviously the red beetle on the green grass is an easier target for the is the easier target for the crow. So with time, the crow will start eating the red beetles because the green beetles get camouflaged. Comes the environment का effect कि due to the environment का effect क्या हुआ, the grass was green, it camouflaged the green beetles. Okay, so with time the population of the red beetle will decrease and green beetles will start to increase, right? और विथ टाइम क्या होगा आगे जाके, जो ग्रीन रेड बीटल्स हैं वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगी बिकॉज दे वर अनएबल टू विथस्टैंड द environment. Okay, hence we can say there was a survival advantage of green beetles over red beetles. ठीक है, ये था. Hence the Darwin theory of natural selection is also known as survival of the fittest theory. Theory of natural selection in easier words में अगर बोलूं कि रोल क्या रहा है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट कैसे हेल्पफुल रहा है इन continuation of the species. फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज यहाँ पे राइट नाउ आई एम इन जम्मू, सपोज यहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, या कोई प्लाग लाइक कंडीशन आ जाती है, ठीक है. डू आई हैव द इम्यूनिटी टू विदस्टैंड द प्लाग? अगर मेरे पास वो इम्यूनिटी है, आई एम नेचुरली सिलेक्टेड टू विदस्टैंड दैट प्लाग. ओके, एंड सपोज मेरा कोई रिलेटिव है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि या कोई इंसान है, लेट अस नॉट टेक अ रिलेटिव, कोई पर्सन बी है, that person didn't have the immunity to withstand that disease. So what will happen? That person will die. I will survive. I was fit for that disease to survive. I had the survival of the fittest kind of thing. Now, I was naturally selected. I was naturally selected against that disease to continue myself in the population. I hope uh, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और इसी पे बेस्ड होंगे डार्विन थ्योरी के की प्रिंसिपल्स, राइट.
आई होप ये वाली जो एग्जाम्पल है आपको क्लियर है. सो हमने एग्जाम्पल देख ली, तो अब हम इसका जो थियरी पोर्शन है उस पे आते हैं. चार्ल्स डार्विन theory of evolution by natural selection, often referred to as theory of evolution, is a fundamental concept in biology that explains how species change over time. मैंने आपको बताया ग्रीन सॉरी रेड टू ग्रीन हुआ and adapt to their environments. कैसे? Green beetle was camouflaged by green grass. I hope this definition is clear to you कि चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक्सप्लेन करती है कि स्पीशीज अपने आप को कैसे चेंज करते हैं ओवर टाइम और वो अडाप्ट कैसे करते हैं एनवायरनमेंट के साथ. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय द प्रीवियस एग्जाम्पल जो कि वो बीटल्स वाली थी. ओके, डार्विन ने ये जो थ्योरी दी थी, इट वाज प्रपोज्ड इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ओके, ये उसकी बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. उससे ये कंसेप्ट उसने लिया था. ओके, विच मीन्स बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स आर सिलेक्टेड बाय नेचर टू पास ऑन देयर ट्रेट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. समझ आ गई? इसमें आप लिख सकते हैं दैट बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स आर सिलेक्टेड, यानी कि वही ग्रीन ऑन द ग्रीन, selected by whom? By nature to pass traits to next generation. I hope this is clear, very well clear. तो ये जो डार्विन ने ये जो थ्योरी की थी, आई मीन ये जो कंसेप्ट लाया था, ही वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन इन HMS बीगल इन 1831 से 33 में इसने एक्सपेडिशन की. कहाँ पे की इसने? गैलापागस गैलापागस आइलैंड में. उस आइलैंड में इसने देखा डार्विन फिंचेस का कंसेप्ट. मैं एक्सप्लेन करूंगी डार्विन फिंचेस क्या है. फिंचेस क्या होती है? फिंचेस आर लाइक बर्ड्स. उसने देखा कि उस आइलैंड में फिंचेस बर्ड्स हैं, पर हर एक बर्ड की जो बीक है ना, दैट इज डिफरेंट. ओके, उसने देखा these beaks were closely related to diet and ecological niche. इकोलॉजिकल नीश, मैं बताती हूँ ये कंसेप्ट क्या है. उसने देखा, फर्स्ट लेट अस सपोज कि देयर इज अ देयर आर टू फिंचेस, टू बर्ड्स. एक जो है ट्री की अपर ब्रांच पे है और एक जो है वो ग्राउंड में अपना सर्वाइवल करती है, राइट. एक ट्री की अपर ब्रांच में है और एक ट्री के ग्राउंड में यानी कि बेस में है. ठीक है, उसने देखा ये इकोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से वो कहाँ रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं, इसकी वजह से भी उनकी बीक्स में डिफरेंस आया. और ऑब्वियसली डाइट से तो आएगा ही. कैसे? कि अगर कोई बर्ड है वो सिर्फ ट्री लीव्स खा रही है, दैट विल हैव different kind of a beak, and there might be some birds that will feed on the nuts. अब अगर कोई बर्ड जो है वो नट्स खा रहा है, उसकी बीक हार्ड होनी चाहिए ऑब्वियसली, एंड स्पेशल स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो ही फाउंड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द डाइट as well as the ecological niche, there was a variation in the beaks of different of the finches, right. इसने इन्फर क्या किया इससे? he inferred all finches evolved from a common ancestor, यानी कि ancestor common है, बट डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? डिफरेंस जो आ रहा है वो इन्वायरमेंट की वजह से आ रहा है. डिफरेंस जो आ रहा है वो डाइट की वजह से आ रहा है. इकोलॉजिकल नीश which you can put together in a category called environment. So natural selection ने क्या किया? Natural selection favored
beak shapes best suited for local food sources. ओके, ये हमने इन्फर किया. सॉरी, हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ ली है कि डार्विन की थ्योरी क्या है, and what where he went to the Galapagos Island. In Galapagos Island he saw different finches he saw finches having different beaks. वो किस वजह से है? ड्यू टू द एनवायरनमेंट. ओके, अब हम जो है की प्रिंसिपल्स जो है वो डार्विन के देख लेंगे कि उसने अपनी थ्योरी को डिफाइन किस बेसिस पे किया. पहला, वेरिएशन. मैंने आपको पहले भी बोला था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पॉपुलेशन में क्या लाती है? वेरिएशन. ठीक है. Within any population of organisms, there is a natural selection in traits of characteristics. ये भी पढ़ लिया हमने. These variations are inheritable, meaning passed down from one generation to another. Obviously, अगर कोई चीज sexually reproduction से variation आ रही है, तो it is obvious that genes will pass on from one generation to another. और इसने बोला within any population of organisms, there is natural selection in traits. Natural selection in traits, हम इधर आपने you have to keep in mind, keep your eye on that example of beetle one, and then with reference to that just see these definitions. It will be very 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 easy for you. Okay, variation देख लिया हमने. Overproduction. Organisms tend to produce more of offsprings that than environment can support. ठीक है. This leads to consumption of limited resources such as foods, mates and habitat. इसकी एग्जांपल देती हूँ. सपोज करिए there is a tree. ट्री की अपर ब्रांच में हम वी सॉ कि वहां पे दो तीन काइंड्स हैं बर्ड्स की. ठीक है, सपोज ए बी सी. अब हमने देखा पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, बट वहां का रिसोर्स उस इकोलॉजिकल नीश में, उस ब्रांच पे विच इज एक्टिंग एज अ नीश, विच इज एक्टिंग एज अ हैबिटेट फॉर बर्ड ए बी सी, हम देखेंगे कि वहां पे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. अब रिसोर्सेज लिमिटेड, वो उन रिसोर्सेज को एसेस कौन कर पाएगा? only those birds will be able to access those resources which will have the ability to withstand the environment. समझ आई? जो कि वहां पे कंपटीशन की वजह से जो भी सरवाइव कर गया वहां पे, that will be able to assess the that फूड और वट एवर देर इज. ठीक है. ओवर प्रोडक्शन भी हमने देख लिया. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देखते हैं. ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड environmental challenges, there is a constant struggle for survival. There is a constant struggle for survival among individuals within a population. Same, this is same as overproduction. Not all individuals will survive and reproduce. मैंने आपको वो ट्री वाली एग्जांपल दी है. You can take idea from that. Differential survival and reproduction. In a given environment, some individuals will have traits that give them better chance of surviving and reproducing than others. These advantageous traits are often referred to as adaptation. ये आप मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ. ये आपने याद रखना है कि किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी इंडिविजुअल जो होगा उसके पास ना कुछ ट्रेट्स जो हैं वो स्पेशल होंगे, और वो क्या करेगा, उन ट्रेट्स को जब रिप्रोड्यूस करेगा, दैट ट्रेट्स विल पास ऑन थ्रू द पॉपुलेशन, एंड वो ट्रेट्स जो हैं उन्हें एडवांटेज देंगे ओवर अदर पॉपुलेशन. उस चीज को हम बोलते हैं एडाप्टेशन. क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन. हमने पढ़ लिया वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन में हमने पढ़ा कि sexual reproduction leads to some sort of variation within the population, and these variations are heritable and passed down from one generation to another. Then हमने पढ़ा overproduction कि there is a continuous competition of reproducing more, but due to that there is limited resource. So इसमें एक struggle of existence का ले आएंगे. Hence, due to constant struggle between the population for various resources, the individuals which have the ability to survive will pass on through the population. Okay. Differential survival and reproduction हमने देख लिया.
और नेचुरल सिलेक्शन हमने पहले का देख लिया. Darwin's central idea is that nature selects which individuals with specific traits will survive. मैंने आपको बता दिया बीटल वाली एग्जांपल, आप ये देख लेना. हेरिटेबिलिटी मतलब जो भी ट्रेड्स हैं वो पास करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और सेवेंथ पॉइंट ग्रेजुअलिज्म का मतलब ये जो प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन का, ये रैपिड नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल नहीं हो, ये फास्ट नहीं होगा, इट विल बी वेरी ग्रेजुअल. आई होप यू आर गेटिंग इट. अब हम कुछ फैक्ट्स एंड इन्फरेंसेस देख लेते हैं. राइट, द बेसिक फैक्ट्स ऑफ हिज थीसिस एंड इन्फरेंस क्या किया उसने, इन्फर क्या किया, इन्फरेंसेस मेड बाय डार्विन. सो लेट अस सी एन एग्जांपल. हमने पहले ऊपर भी पढ़ा, ये थॉमस माल्थस का एक प्रिंसिपल था, माल्थुसियन प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं. ही सेज कि किसी भी एरिया में पॉपुलेशन जो है वो हमेशा इंक्रीज होगी ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड जो उसका रिसोर्स होगा, जो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली, ठीक है, और जो रिसोर्स होगा वो अरिथमेटिकली इंक्रीज होगा. तो all organisms have great potential of fertility, which results in exponential growth of the population size. सही बोला, बिल्कुल करेक्ट था ये डार्विन का कहना कि किसी भी पॉपुलेशन में जो है वो फर्टिलिटी अगर ज्यादा है तो वो लीड करेगी पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन ऑफ द फॉर द एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. सेकंड फैक्ट उसने बोला कि पॉपुलेशन जनरली क्या करता है, स्टेबिलिटी डिस्प्ले करता है. और देयर माइट बी माइनर एनुअल फ्लक्चुएशंस इन द पॉपुलेशन, और मेजर फ्लक्चुएशंस जो होंगी ना बड़ी ही रेयर होंगी, जो पॉपुलेशन में चेंजेस लाएंगी. जनरली जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही स्टेबल होगा, बट अगर इंस्टेबिलिटी आएगी दैट विल बी ड्यू टू माइनर और सम मेजर फ्लक्चुएशंस. थर्ड उसने बोला जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हो रहे हैं. पहला क्या इसने इन्फर किया, हायर पोटेंशियल फर्टिलिटी, ज्यादा इंडिविजुअल होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, उसकी वजह से स्ट्रगल आएगा एग्जिस्टेंस का, उसकी वजह से कुछ population will survive through, some population will die. This brought to the concept of survival of the fittest. इसमें natural selection भी इसे बोलते हैं. You got my point? फैक्ट वन हमने देखा पॉपुलेशन के रिलेटेड, सेकेंड हमने देखा स्टेबिलिटी के रिलेटेड, थर्ड हमने देखा रिसोर्स के रिलेटेड, फोर्थ हम देखेंगे वेरिएशन के रिलेटेड. मैंने बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आएगा, वेरिएशन आएगा. और नो टू इंडिविजुअल्स आर लाइक, इवन यू नो कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स भी डिफरेंट होते हैं. उनकी इन्वायरमेंट कंडीशन अगर जो इन्वायरमेंट उनका अलग होता है, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वेरिएशन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द ट्विन्स. इवन द ट्विन्स आर नॉट सेम, वो भी पॉपुलेशन में देर इज अ वेरिएशन. फिफ्थ फैक्ट देखो, वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल, यानी कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दे विल पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. हेंस, एक सेकेंड. सो हमने देखा फैक्ट 4 देख लिया और फैक्ट 5 देख लिया. अब इसके इन्फरेंसेस उसने क्या बोला डार्विन सर ने, कि सर्वाइवल is not a random process. It depends upon the genetic constitution of individuals. Comes the concept of sexual reproduction, comes the concept of variation. उसने बोला कि survival random नहीं होगा, will depend on the genetic constitution. Sexually reproduce होगा, variation आएगी, genes develop होंगे. If those genes are able to withstand the population, withstand the environment, it will pass. If not, then it will stop. Only those with advantages. See, I have explained. I won't explain again.
इन्फरेंस 3, प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज होगी इससे, इससे एवोल्यूशन होगा और ग्रेजुअल चेंज है. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर, एंड इससे बेटर आई डोंट थिंक कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव गॉन वेरी स्लो. ओके, एंड लेट अस बिगिन विद द क्रिटिसिज्म. ठीक है, हम क्रिटिसिज्म से बिगिन करेंगे. क्रिटिसिज्म क्या रहा है डार्विन का इस थ्योरी ने. दिस थ्योरी हमने कहाँ पढ़ी थी यूज एंड डिसयूज की, इफ यू पीपल कैन रिकॉल, वी डिड इट इन लेमार्क की थ्योरी में. इट डिड नॉट एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. यूज एंड डिसयूज में बोला था अगर एक ऑर्गन जो है बॉडी का, इट इट इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली यूज्ड, it is being continuously used, it will tend to increase in size. But we have seen that human heart जो है वो continuously work करता रहता है, but again it did not increase in size. Second, did not explain the role of over specialization. क्या जो over specialized organs हैं, this theory fails to explain why excessive development of certain organs become harmful instead of being beneficial. ठीक है, तो इसमें बोला कि कुछ ऑर्गन्स जो हैं अगर वो ओवर स्पेशलाइज्ड हैं सपोज, वो पॉपुलेशन में बेनिफिशियल क्यों नहीं है, वो हार्मफुल क्यों है. लाइक ह्यूज एंटलर्स ऑफ आयरिश, जो भी जो भी एंटलर्स होते हैं किसी भी डेयर के, वो हार्मफुल क्यों होते हैं किसी और के लिए, ये हमने इसमें देखा. ओके, अराइवल ऑफ फिटेस्ट, कि ये कंटिन्यू कैसे हो रहा है पॉपुलेशन में. डार्विन एक्सप्लेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट नॉट इट्स ओरिजिन. ठीक है, और अपेयरेंस ऑफ फिटेस्ट वेरिएशन, डार्विन ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो वेरिएशंस आ कैसे रही हैं, वो ओरिजिन कैसे हुआ, उसने सिर्फ अपनी थ्योरी दी. इट डिड नॉट एक्सप्लेन नॉन अडेप्टिव ट्रेट्स. उसने जो नॉन अडेप्टिव जो traits, it did not explain the propagation of non-adaptive traits. Natural selection cannot account for inheritance of characters that do not continue to survival. ठीक है, इसने बोला कि there are some natural selection जो है वो alone cannot account for inheritance of characters, right? इनहेरिटेंस के लिए वो अलग मेथोडोलॉजी है. वो मेथोडोलॉजी जो थी ट्रेड्स का प्रोपोगेट करने वाला, वो एक्सप्लेन नहीं किया था डार्विन सर ने. ठीक है, इसमें हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की एग्जाम्पल देखेंगे कि ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले ट्री ट्रंक्स जो थी वो बड़ी लाइट होती थी. ठीक है, और वहां पे ना वही बीटल वाली एग्जांपल, दो टाइप के मॉथ्स आके एक्यूमुलेट होते थे. एक वाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ. तो ट्री ट्रंक लाइट होने की वजह से क्या हुआ कि जो वाइट मॉथ थे वो कैमोफ्लाज हो गए, और ब्लैक वाले जो थे उनकी कुछ वजह से वो वॉश आउट होने लगे पॉपुलेशन से. बट ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होने लगा, जो ट्री की ट्रंक्स थी दे स्टार्ट टर्निंग डार्क, दे स्टार्टेड टर्निंग डार्क. उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लैक, अब ट्री ट्रंक क्या हो गई, ब्लैक हो गई. अब ब्लैक मॉथ जो है वो कैमोफ्लाज होने लगे, बट व्हाइट मॉथ वॉश्ड आउट ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, ये हुई नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, इट डिड नॉट एक्सप्लेन, इसने एम्फीबियंस का जो एवोल्यूशन है, जैसे कि फिशेस का, एम्फीबियंस का, इसने एवोल्यूशन नहीं बताया कि हाउ देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स टू एक्वेटिक फॉर्म. ओके, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. उसने इनहेरिटेंस के बारे में बात ही नहीं की. ठीक है, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, की वेरिएशन हो कैसे रहा है, उसने सिर्फ मेजर मेजर पॉइंट्स दिए, बट इट डिड नॉट got into the depth of the theory. So I hope ये criticism भी आपको easily learn हो जाएगा. Okay, we have done with the Darwin theory. Then we'll begin with post Darwin theories.
वो थोड़ी लंबी है, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है. And if you have, sorry, and if you have any sort of doubts, go into the comment section and type down your queries. I'll address those queries as soon as possible if you people are having. And please start writing the PYQs also. अगर आपके पास डिफिकल्टी हो रही है आंसर राइटिंग फ्रेम करने में, यू कैन अगेन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और वी कैन मेक एन इंस्टाग्राम ग्रुप इन विच वी ऑल कैन कनेक्ट. और उसमें मैं अपनी आंसर राइटिंग जिस तरीके से मैं लिखती हूँ, देन वी कैन इवेलुएट ईच अदर ऑल्सो, राइट? So I think we should end with today's lecture. And before going, let us do the drill of liking, sharing, and subscribing to my YouTube channel so that we as people can evolve ourselves in the right direction, um, in the right path, so that we are easily able to grasp anthropology as a subject, and so that we can all grow and glow together. So thank you and have a nice day.